معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، آج سے ایک نئی کہانی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جو بہت پسند آئے گی، جس کا ٹائٹل نیم ہے بد روحوں کا مسکن۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بھینٹ چڑھائے جانے والے جسموں کے پنجروں کا ایک ڈھیر چٹان کے قریب پڑا تھا، اور جب نیم تاریک غار میں مشعلوں کی روشنی ان ڈھانچوں پر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے بھیانک بلائیں رقص کر رہی ہوں، موت کا رقص۔ قربان گاہ کی چٹان پر جا بجا خون کی جمی ہوئی دھاریاں گزرے ہوئے برسوں کے ساتھ سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ غار کی نیچی چھت مشعلوں کے دھویں سے سیاہ ہو چکی تھی۔ قربانی کی رسم کے مطابق 2 آدمی قربان گاہ تک گئے۔ ان کے گرد ڈھول بجانے والوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، جن کے پسینے میں نہائے ہوئے سیاہ جسم چمک رہے تھے۔ ڈھول کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس آواز کو سن کر ایک عجیب سی وحشت اور دیوانگی کا احساس ہونے لگا۔ ایک آدمی سفید چوگا پہنے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے نے بھڑکیلے رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، جو مشعلوں کی روشنی میں آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ جو ہی وہ بھینٹ دینے والی چٹان کے نزدیک پہنچے، دوسرے آدمی نے ایک چھوٹا سا صندوق نکالا جو ریشم میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے وہ صندوق ایک ہاتھ سے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اس پر پڑا ہوا کپڑا ہٹا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا تابوت تھا، جس میں کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا رکھی تھی۔ یہ ایک عورت کا پتلا تھا۔ پہلا آدمی تابوت پر جھکا اور پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اوپر اٹھا کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کچھ گا رہا ہو۔ ڈھول کی آواز مدھم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی، لیکن فضا میں بد روحوں کا افسوں بس دستور چھایا رہا۔ کاوا سوترا، کاوا ایسترا، جادو کے بول ابھی تک غار میں گونج رہے تھے۔ قربان گاہ سے 1.5 میل دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک مکان میں ایک نوخیز دوشیزہ جو محو خواب تھی، اچانک سوتے میں بڑبڑانے لگی۔ اس کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کے لب واہ ہوئے اور اس نے خواب آلود آواز میں گنگانا شروع کر دیا، کاوا توسرا، کاوا ایسترا، کاوا۔ سفید چوگے والے آدمی نے بڑی احتیاط سے تابوت کو قربان گاہ کے چبوترے پر رکھ دیا اور اپنے لباس سے شیشے کی ایک چھوٹی سی نلکی نکالی۔ مشعلوں کی تیز روشنی میں نلکی میں جیسے ایک سرخ شعلہ سا بھڑکا۔ یہ خون تھا، سرخ خون، جو مشعلوں کی روشنی میں بہت بھیانک نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف ایک روح فرسا خاموشی چھا گئی۔ جادوگر نے اس نلکی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر آہستہ سے اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس نے بڑی تیزی سے خون کا ایک بڑا سا گھونٹ اپنے منہ میں بھر لیا اور پھر بجلی کی سی سرعت سے عورت کے پتلے پر اگل دیا۔ دور گاؤں میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی ہوئی نوخیز دوشیزہ نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑا رہی تھی اور اس کے بازو پر بندھی ہوئی پٹی کے زخم سے خون رس رس کر اس کی کوہنی کو تر کرنے لگا تھا۔ کاؤنٹ کارلائل ان دنوں محض تفریح کے موڈ میں تھے اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی چھٹیوں کو غارت نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے پہلے ہی اپنا سارا پروگرام مرتب کر لیا تھا اور اب وہ تیزی سے اپنی ساری تیاریاں مکمل کر رہے تھے۔ وہ تصور میں خود کو لندن کی مصروف ترین زندگی اور گہما گہمی سے دور اسکاٹ لینڈ کی خاموش اور پرفضا پرسکون میں گنگناتی ندی کے کنارے مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ لیکن برا ہوا اس لمحے کا جب خیالوں میں محو کاؤنٹ کارلائل کے سارے پروگرام چوپٹ ہو کر رہ گئے۔ ان کی بیٹی اسٹڈی روم میں آئی اور ڈاک کے لفافوں کا ایک پلندہ میز پر لا کر پٹک دیا۔ کاؤنٹ جان بوجھ کر اس ڈاک سے نظریں چرانے لگے۔ گلوریا میز کے قریب کھڑی ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کاؤنٹ کارلائل اس کی طرف دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے کہہ رہے ہوں، میں بہت مصروف ہوں۔
वो उनकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन फिर भी अपनी जगह से नहीं हिली। काउंट कार्लाइल ने एक जमाई ली और गोया हुए, अच्छा भाई बताओ क्या मामला है। ग्लोरिया ने अपनी आंखें झपकाईं और उसकी आंखें सब्जी माइल सुर्ख थीं। उसे हरनी जैसी ये खूबसूरत आंखें अपनी माँ से विरसे में मिली थी। काउंट कार्लाइल एक बार फिर माजी के इन ऐवानों में खो गए जहां उन्हें अपनी दिलनशी बीवी की यादें रक्सा नजर आती थीं। ये सही था कि उनकी शरीके हयात को मौत के जालिम हाथों ने उनसे छीन लिया था, लेकिन वो खुश थे कि ग्लोरिया के रूप में उनकी ज़िंदगी का ये खला पूरा हो गया था। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बावकार थी और दिल का शिखदू खाल की मालका भी। वो हर मरहले पर अपने बाप का साथ देने के लिए बाखुशी तैयार रहती और उनका हर काम अपना अव्वलीन फ़र्ज समझ कर करती। वो किसी तरह भी अपनी माँ से कम नहीं थी। काउंट कार्लाइल अपनी ज़िंदगी का ग्लोरिया के बगैर कोई तस्वर ही नहीं कर सकते थे। वो दोनों यूं ही हंसते खेलते रूठते हंसते अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ बखेरते रहते। ग्लोरिया ने खतों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक खत टारलेटन की तरफ से आया है। टारलेटन, ये कौन है? काउंट कार्लाइल के लहजे से हैरत ज़ाहिर थी। ग्लोरिया मुस्कुराई, ये किसी काम का आदमी नहीं है, ये कार्नवाल के एक गांव का नाम है, लेकिन मैं तो वहाँ किसी आदमी से वाकिफ़ नहीं हूँ, काउंट कार्लाइल ने कहा। ग्लोरिया ने अपने सुनहरी बालों पर हाथ फेरा और उसके याकुवती होंठ सख्ती से भींच गए। वो अच्छी तरह जानती थी कि काउंट कार्लाइल जानबूझकर तगाफुल बरत रहे हैं। काउंट कार्लाइल ने कुछ देर तामल किया, फिर नीम वली से खत ग्लोरिया के हाथ से लेकर खोला। ये खत उनके होनहार शागिर्द डॉक्टर वालेट ने टारलेटन से लिखा था। डॉक्टर वालेटन ग्लोरिया की अजीज तरीन सहेली मारिया का शोहर था और 2 वर्ष पहले मारिया और वालेट टारलेटन गांव में जा बसे थे। काउंट कार्लाइल के बुक शेल्फ के करीब खड़े होकर खत को बगौर पढ़ने लगे। उन्होंने कई बार खत को पढ़ा, लेकिन ये बात उनकी समझ में ना आई कि आखिर उनका ये ज़हीन और फतीन शागिर्द इस कदर मबहम सा खत किस हिसाब में लिख रहा है। ग्लोरिया बड़े गौर से काउंट कार्लाइल की पेशानी पर फिक्र और तरद्दुद की लकीरें देख रही थी और उससे रहा ना गया। आखिरकार वो बोली, क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? टारलेटन में सब खैरियत तो है? खैरियत, काउंट कार्लाइल ने कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे। काउंट कार्लाइल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और ग्लोरिया की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए फिर खत पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें यूँ लगा कि जैसे खत का एक एक लफ्ज़ हमदर्दी, रहम और खौफ के अलावा मदद की दरख्वास्त करता हुआ कमरे की खामोशी में गूंज रहा हो। ये एक मायूस और बेआस आदमी की अपील थी, लेकिन काउंट कार्लाइल को अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था कि ये उनके बेहतरीन शागिर्द डॉक्टर वालेट की तहरीर है। यूँ लगता था कि जैसे हर तरफ से मायूस हो जाने के बाद वालेट ने ये चंद सतरें घसीटी हैं। नौजवान डॉक्टर ने लिखा था कि उसका गांव पुर इसरार और मोहल्ला किस्म के आर्ज़ों की ज़िद में है। लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। काउंट कार्लाइल बड़बड़ाए और उन्हें इस रवायती तशबीह से सख्त उलझन होती थी। कम अज़ कम काउंट कार्लाइल को वालेट से इस मायूसी की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। उन्होंने आगे पढ़ा, जगह जगह वालेट ने उनसे मदद की दरख्वास्त की थी, उनसे मशवरा तलब किया था, लेकिन इस बात की कोई वजाहत नहीं की थी कि आखिर वो उनसे किस किस्म की और किस नौइयत की अमदाद या मशवरे का ख्वाह है। यूँ लगता था कि जैसे ज़िंदगी की रमक उसकी तहरीर से रुखसत हो चुकी हो, जैसे ज़िंदा रहने की ख्वाहिश सल्ब कर ली गई हो। एक बेनाम सी बेआसरा सी उम्मीद लिए उसने ये खत काउंट कार्लाइल को लिखा था। काउंट कार्लाइल को यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी ऐसे मरीज़ की एक जाँ बलब इंसान की दरख्वास्त पढ़ रहे हों, जिसकी बदन से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया हो और अब वो मौत की दहलीज पर अपने आखिरी मसीहा का मुंतज़िर हो। डैडी, आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं, बात क्या है? ग्लोरिया ने अल्तजामीज़ लहजे में कहा। काउंट ने खत को कुछ हिस्सा ग्लोरिया को पढ़कर सुनाया। लिखाई इस कदर ख़राब थी कि तहरीर की रवानी जा बजा बदखती में तब्दील होकर रह गई थी। आखिरकार परेशान होकर काउंट कार्लाइल ने
खत ग्लोरिया के हवाले कर दिया। जब तक ग्लोरिया खत पढ़ती रही, काउंट कार्लाइल बेचैनी और सरासीमगी के आलम में बार बार अपना निचला होंठ काटते रहे। काउंट कार्लाइल के ज़हीन तरीन शागिर्दों में डॉक्टर बालट का नाम सरे फहरिस्त आता था। वो एक बेहद ज़हीन तालिब इल्म था जिसने अपने ज़माने में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये बात वाकई बड़ी अजीब सी थी कि शहरी ज़िंदगी में रहकर भी उसने स्पेशलिस्ट बनकर रुपया बटोरने की बजाय दूर दराज देहाती इलाकों में जाकर प्रैक्टिस करने का फैसला किया था। बालट का ख्याल था कि गरीब देहातों को इलाज की बेहतर सहूलतें सिर्फ इसी सूरत में मिल सकती थीं जब अच्छे डॉक्टर शहरी ज़िंदगी को खैर आबाद कहकर उनकी खबरगिरी के लिए देहात में सकूनत इख्तियार कर लें। काउंट कार्लाइल हैरान थे कि देहात में 2 बरस गुजारने के बाद बालट की जहानत क्यों जवाब दे गई थी जो उसने इस कदर गैर वाज़े और मबहम सा खत उन्हें लिखा। इस खत की बेसरूपा बातों ने उन्हें बुरी तरह उलझा कर रख दिया। ग्लोरिया भी इस सूरत हाल से खासी परेशान नजर आई थी। उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि डॉक्टर खुद भी बुरी तरह बीमार हैं। यकीनन काउंट कार्लाइल ने उसकी तायद की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं। मैं किस तरह उसकी मदद कर सकता हूं। मुझे रह रह कर उस बेचारी मारिया का ख्याल बुरी तरह सता रहा है। ग्लोरिया ने कहा कि खुदा जाने वो किस हाल में होगी। काउंट कार्लाइल ने असबात में गर्दन हिलाई। जाहिर है कि अगर बालट इस कदर परेशान है तो मारिया भी ज़रूर परेशान होगी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अभी तक काउंट कार्लाइल के दिलो दिमाग पर स्कॉटलैंड के मनाजर बुरी तरह छाए हुए थे और वो अब भी अपनी तकर्री के प्रोग्रामों से दस्तबरदार होने पर तैयार नहीं थे। लेकिन ग्लोरिया ने इस कदर इसरार किया कि उन्हें हथियार डालते ही बन पड़ी। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे ग्लोरिया की आंखों ने उन्हें मसहूर कर लिया हो और वो बेबस होकर रह गए हों। काउंट कार्लाइल ने फैसला किया कि वो टारलिटन का सफ़र रेल की बजाय बग्गी से करेंगे। इसलिए उन्होंने एक बग्गी किराए पर हासिल की और टारलिटन की तरफ चल दिए। रास्ते में ग्लोरिया कुदरती मनाजर से लुत्फ़ अंदोज हो रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए वो यकायक चीखी, डैडी वो देखिए, वो एक खूबसूरत लोमड़ी किस तेज़ी से भागती चली जा रही है। हाँ, काउंट कार्लाइल ने बेनियाजी से कहा, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि ये लोमड़ी उन लोमड़ियों से कतई मुख्तलिफ नहीं जो मैं अब तक देख चुका हूँ। ग्लोरिया ने मुंह बसोर लिया। उसे जानवरों से हमेशा बड़ी दिलचस्पी और हमदर्दी रही थी। यकायक बाहर ज़ोर ज़ोर से किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ग्लोरिया ने खिड़की से झांका तो उसने देखा कि कुछ नौजवान शिकारी तनुमंद घोड़ों पर सवार बग्गी के साथ साथ चले आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों की एक टोली भी सड़क के किनारे जमा हो गई थी। यकायक एक रख्त आवाज़ उभरी, क्या तुमने उसे देखा है? किसे जनाब? बग्गी वाले की आवाज़ मुतहय्यर थी। अहमक, क्या तुमने यहाँ किसी लोमड़ी को तो नहीं देखा? नौजवान शिकारी ने कोचवान की तरफ नफरत से देखते हुए कहा और इसी असना में ग्लोरिया ने कोच की खिड़की से झांककर उस खोबरू नौजवान शिकारी की तरफ देखा और बोली, मैंने उसे देखा है। तुम जिस लोमड़ी के बारे में पूछ रहे हो वो उस तरफ, वहाँ उस वादी की तरफ गई है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो जल्दी करो, ऐसा ना हो कि तुम उसे पकड़ ना सको। नौजवान ने एक पुरजोश कहका लगाया, तुम फिक्र ना करो डियर लेडी, हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। उसने चाबक हवा में लहराया और उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसके ताक़ब में दूसरे शिकारी और उनके शिकारी कुत्ते भी तीर की मानद जन से चल दिए। काउंट कार्लाइल ने मशकूक अंदाज में ग्लोरिया की तरफ देखा। मेरा ख्याल है ग्लोरिया, तुमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया। डैडी, आपका ख्याल बिल्कुल सही है, ग्लोरिया ने उनकी तायद की। काउंट कार्लाइल मुस्कुराए और बोले, चलो कम अज़ कम वो लोमड़ी तो तुम्हारी ममनून होगी ना। खुदा करे कि अब उस शिकारी से हमारा टकराव ना हो। 15-20 मिनट के बाद वो कार्नवाल के उस गांव के नज़दीक पहुंच गए। सामने से आते हुए जनाजे ने जैसे उनका रास्ता रोक लिया। 6 आदमी ताबूत उठाए आहिस्ता आहिस्ता चर्च यार्ड की तरफ सर झुकाए हुए चले जा रहे थे। गांव का पादरी उनकी रहबरी कर रहा था। फिजा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और काफूर की तेज बू हवा में तैर रही थी। यकायक उस खामोशी में घोड़ों की तेज टापों की आवाज़ें उभरना शुरू हो गईं।
शिकारी करीब आ रहे थे और वो लोग सड़क के किनारे आकर रुक गए और फिर उसी नौजवान ने, जिसे ग्लोरिया ने गलत पता बताया था, बग्गी की खिड़की के करीब आकर झांका और चुभती हुई तेज आवाज में बोला, खूब, ये भी एक ही रही। और उसके चेहरे पर शैतानियत और खबासत की परछाइयां लहरा रही थीं। लूमड़ी उस तरफ गई थी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी उसी तरफ जाना चाहिए, क्यों, ठीक है ना? ये कहकर उसने चाबक लहराया और बग्गी में जुते हुए घोड़ों पर बरसाना शुरू कर दिया। बग्गी तेजी से सामने से आते हुए जनाजे की तरफ बढ़ रही थी। जनाजे में शरीक लोगों में भगदड़ सी मच गई। उन लोगों ने संभलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस अफरा तफरी में उनका तवाज़ुन कायम न रह सका और ताबूत सड़क के किनारे ज़मीन पर जा गिरा। लकड़ी का ताबूत एक भारी आवाज़ से गिरा और एक मसक शुदा लाश लड़क कर सड़क के किनारे जा गिरी। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे वो आसमानों और खिलाओं में कुछ तलाश कर रही हो। कोचवान ने घोड़ों पर काबू पा लिया था। काउंट कार्लाइल सख्त गैज़ो गज़ब के आलम में बग्गी से उतरे, जबकि शिकारी नौजवान इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुरा रहा था। यकायक उस भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी और आगे बढ़ा और उसका चेहरा जर्द और बुरी तरह सता हुआ था, जैसे उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी ना रहा हो। उसके और लाश के चेहरे में बेहद मशाबत थी। उसने अपना हाथ बुलंद किया और चाहता ही था कि उस नौजवान को उसकी गुस्ताखी की सजा दे कि अचानक पादरी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नहीं मार्टी, नहीं। काउंट कार्लाइल ने बफरे हुए लहजे में कहा, तुम उल्लू के पट्टे, आखिर अपने आप को समझते क्या हो? नौजवान ने बेइतनाई से कंधे उचकाए, अपने साथियों की तरफ देखा और फिर ये लोग कहके लगाते अपने घोड़े भगाते चले गए। चौड़े चकले शानों वाला मार्टी आगे बढ़ा और दूसरे लोगों के साथ मिलकर लाश को दोबारा ताबूत में रखवाने लगा। ग्लोरिया भी बग्गी से उतर आई और उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सब लोगों के चेहरों पर सर्द मोहरी और गुमो गुस्सा की तासरात देखकर उसे कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। काउंट कार्लाइल ने कहा कि मुझे आप लोगों के जज्बात का पूरी तरह एहसास है, लेकिन आप लोगों ने खुद देखा होगा कि यह अफसोसनाक हादसा हमारी वजह से नहीं हुआ। मार्टिन एक बार फिर नफरत से काउंट कार्लाइल और ग्लोरिया की तरफ देखा और गुर्राया, मैं कहता हूं कि चले जाओ यहाँ से, हमें तन्हा छोड़ दो। फिर मार्टिन ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर ताबूत उठाया और चर्च यार्ड की तरफ चल दिया। पादरी ने काउंट कार्लाइल के करीब आकर सरगोशी की, ख्याल ना कीजिएगा, ये बात वैसे भी किसी अलमिये या सानेह से कम नहीं। मरने वाला उसका भाई था, इसलिए वह इस कदर तलखी से पेश आया है। क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? काउंट कार्लाइल ने उसे बताया कि आप हमें डॉक्टर और मिसिस वाल्ट का घर बता दीजिए। पादरी ने चौक की तरफ इशारा करते हुए कहा, नौजवान वाल्ट का मकान वो सामने है, वही मकान जिस पर लोहे की जालियां लगी हुई हैं। आप आखिरी बार उससे कब मिले थे? काउंट कार्लाइल ने कहा, 2 बरस पहले। उस पर पादरी ने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए कहा, खुदा, अब आप उसे बेमुश्किल पहचान सकेंगे। बस्ती में होने वाले हौलनाक अमवात की बेहानक तादाद ने डॉक्टर वाल्ट की दुनिया ही बदल कर रख दी है। ये कहकर पादरी ने जनाजे के आगे अपनी जगह संभाली और वह सब लोग थके थके बोझल कदमों से चर्च यार्ड की तरफ चल पड़े। डॉक्टर वाल्ट के छोटे से मकान का दरवाज़ा बेरंगो रोगन था। खिड़कियां बड़ी मजबूती से बंद की गई थी। खिड़कियों के करीब जमी हुई मिट्टी को देखकर काउंट कार्लाइल को बिल्कुल यकीन नहीं आया कि वो मारिया जैसी नफासत पसंद और सलीका शार लड़की के घर के सामने खड़े हैं। हर चीज़ पर एक वीरानी सी छाई हुई थी। कोचवान ने सदर दरवाजे पर दस्तक दी और फिर इंतज़ार करने लगा। उसने फिर दोबारा दरवाज़ा खटखटाया और इस बार दरवाज़ा हिला ज़रूर, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। कोचवान ने काउंट कार्लाइल की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या करूं। काउंट कार्लाइल के कहने पर उसने एक बार फिर दस्तक दी। दरवाज़ा इस बार सख्ती से पीटा गया। एक हल्की सी चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुला, बल्कि नीमवा हुआ। दरवाजे की दरार से काउंट कार्लाइल ने एक दुबली पतली जर्द रो और बीमार सी औरत को देखा जो अंदर नीम तारीकी में खड़ी थी। वो एक कदम आगे बढ़े। औरत ने थकी हुई आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब घर पर नहीं हैं। औरत की आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे और वो दरवाज़ा बंद करना ही चाहती थी कि ग्लोरिया ने गैर यकीनी अंदाज में तकरीबन चीखते हुए कहा, मारिया। कौन है? और मारिया की आवाज़ जैसे दूर किसी कुएं में से आ रही थी। ग्लोरिया ने फिर पूछा, मारिया, क्या ये तुम हो?
और इस बार दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। जो ही बाहर की तेज़ रोशनी मारिया के चेहरे पर पड़ी, काउंट कार्लाइल शशदर रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये परेशान हाल और वैश्यददा औरत वही मारिया है जो उनकी बेटी ग्लोरिया की सबसे ज़्यादा दिलकश, जिंदगी से भरपूर, पुरजोश और शानदार सहेली थी। दोनों लड़कियां एक दूसरे से लिपट गईं। खुशी के मारे मारिया की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने काउंट कार्लाइल को अंदर आने की दावत दी। मारिया, मुझे तुमसे दोबारा मिलकर बेहद मसरत हुई, काउंट कार्लाइल ने कहा। मकान बेहद मुख्तसर था। काउंट कार्लाइल मिस्र थे कि वो और ग्लोरिया गांव की सराय में ठहरेंगे, लेकिन शबबाशी के अलावा अपना ज़्यादातर वक्त वालट और मारिया के हमरा गुजारेंगे। काउंट कार्लाइल ने महसूस किया कि तमाम मकान पर अजीब सी वीरानी और वहशत बरस रही थी। हर चीज़ इस तरह गिर्द आलूद थी जैसे उसे बरसों से साफ ही ना किया गया हो। खिड़कियों के शीशों पर गिर्द की तहें जमी हुई थीं। गुलदानों के फूल जाने कितने महीनों से मुरझा चुके थे। एक दर्दनाक सी बेकाफ़ी और मुर्दनी का एहसास दिल को बस मुर्दा किए देता था। यही नहीं बल्कि मारिया के गालों के गुलाब भी गुलदान के गुलाबों की तरह मुरझा कर जर्द हो चुके थे। काउंट कार्लाइल इस बात को अच्छी तरह भांप चुके थे कि पूरे मकान पर बेहद वीरानी और वहशत का राज है। हर चीज़ से बेजारी और बेनियादी टपक रही है। यकायक उनकी नज़र मारिया की कलाई पर पड़ी हुई पट्टी पर पड़ी और वह पूछे बगैर न रह सके, मारिया, ये सब क्या है? क्या तुम्हें चोट लगी है? मारिया ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे एक मामूली जख्म करार दिया और काउंट कार्लाइल को यूं लगा जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने इसरार किया कि वो एक नज़र मारिया के जख्म को देखना चाहते हैं, लेकिन मारिया ने यह कहकर उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी कि वालट यानी उसका शोहर एक अच्छा डॉक्टर है। काउंट कार्लाइल ने खुश्क लहजे में मारिया की तायद की और बोले, हाँ, सुना तो मैंने भी यही है। उनकी आवाज़ में तंज का अंसर झलक रहा था। ग्लोरिया ने अपने वालिद को रोका और बोली, छोड़िए भी डैडी, इस तज़किरे से कोई फ़ायदा नहीं। ज़रा मैं एक नज़र भर कर फिर अपनी मारिया को देख तलूँ। और फिर वो भरपूर निगाहों से मारिया का जायज़ा लेने लगे। मारिया के जर्द गालों पर सुर्खी की हल्की सी लहर दौड़ गई। बेसाख्ता उसका हाथ उलझे हुए बालों से खेलने लगा। वो बोली, आप लोग इतने गैर मुतवक्का तौर पर आ गए कि मैं तैयार भी ना हो सकी। काउंट कार्लाइल ये महसूस किए बगैर नहीं रह सके कि इस लड़की को बेहद तवज्जो और तीमारदारी की अशद ज़रूरत है। उनका ख्याल था कि गांव की पुरफ़िज़ा आबो हवा में तंदुरुस्ती मज़मर होती है, लेकिन मारिया तो बरसों की बीमार नज़र आती थी। कोचवान ने सामान उतारकर सद दरवाजे के बाहर कंपाउंड में रख दिया। काउंट कार्लाइल अब भी किसी होटल या सराय में क़याम करने पर मिस्र थे। उन्हें यकीन था कि मारिया का मकान बेहद मुख्तसर है और इतने छोटे से मकान में 2 मेहमानों की गुंजाइश मेज़बानों के लिए खासा दर्द सर बन सकती है। लेकिन ग्लोरिया कुछ और ही सोच रही थी और उसने हालात में मारिया के साथ रहने का फैसला कर लिया था। उसने मारिया का बाजू थामा और उसे कशां मकान के अंदर ले गई। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द मकान की सफाई कर डाले और तमाम कब्रों को एक नई सूरत दे सके। उसका दिल घर की हालत और गंदगी को देखकर बुरी तरह मतला रहा था। काउंट कार्लाइल ने अपनी बेटी की राय से इख्तलाफ न कर सके। वो खुद भी यही सोच रहे थे कि उन्हें बहरहाल वालट और मारिया के यहाँ ही क़याम करना चाहिए। ग्लोरिया अंदर कमरे में मारिया का हाथ बटा रही थी और उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। काउंट कार्लाइल ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर उन्होंने बाहर सदर दरवाजे पर मुंतज़िर कोचवान को किराए की अदायगी के करके रुखसत कर दिया। काउंट कार्लाइल सोच रहे थे कि गालबन जब डॉक्टर और उसकी बीवी नए इस मकान में आए होंगे तो वो उसे बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत बनाए रखते होंगे। इस वक्त भी जबकि ग्लोरिया घर की सफाई करने पर तुली हुई थी, उन्हें यूँ लग रहा था कि जैसे मारिया के एहतजाज के बावजूद भी ग्लोरिया अपने काम में बड़ी जांफशानी और तंदही से मगन है और मकान की हर गोशी को झाड़ पूंज कर साफ कर रही है। चंद लम्हों बाद ग्लोरिया चाय की ट्रे संभालती कमरे में दाखिल हुई और काउंट कार्लाइल को चाय की तेज महक ने मसूर कर दिया। मारिया ग्लोरिया की रफ्तार को देखकर खासी खफीफ सी नजर आ रही थी।
काउंट कार्लाइल ने बातों का मौजू बदलने की खातिर मारिया से डॉक्टर के बारे में पूछा। मारिया के चेहरे पर खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। उसने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, वो अपने राउंड पर होंगे। काउंट कार्लाइल को उसके लहजे की बेयकीनी से वहशत सी हो रही थी। क्या यहाँ मरीज बहुत ज़्यादा होते हैं? उन्होंने फिर पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, कुछ दिनों से लोग बहुत परेशानियों में मुब्तला हैं, मारिया ने दिल की बात कह दी। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि किचन में गैस जलने की तेज़ बू ने मारिया को मज़ीद सवालात से निजात दिला दी और वो अंदर की तरफ लपकी और ग्लोरिया भी उसके पीछे अंदर चली गई। अंदर कार्लाइल ने सदर दरवाजे का रुख किया और चौक के करीब बाहर की तरफ देखने में महू हो गए। गांव में अक्सर मकानात बड़े खूबसूरत फ़ने तामीर का नमूना थे और उसमें कोई शक नहीं था कि ये एक खूबसूरत गांव था। लेकिन जाने क्यों गांव के दरो दीवार पर हुज़्नो मलाल की कफ़ियत सी तारी थी और फिज़ा में सोगवारी रची हुई थी। काउंट कार्लाइल ने देखा कि चर्च यार्ड की तरफ से ताबूत को दफन करने के बाद लोगों का एक गिरोह बाहर की तरफ जा रहा था। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाए बाहर की तरफ बढ़े और फिर एक एक करके सब बार में गायब हो गए। काउंट कार्लाइल ने सड़क पार की और तेज़ी से बार में दाखिल हुए। अंदर का माहौल बाहर की निस्बत खासा खनक था। काउंट कार्लाइल ने मार्टी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मार्टी, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे? मार्टी ने नहूसत से कंधे उचकाए और बोला, जी नहीं शुक्रिया, मैं अपने लिए खुद शराब खरीदूंगा। टॉम, हमारे लिए, मेरा मतलब है कि सब के लिए बियर के गिलास तैयार करो। इसी दौरान लोगों के हजूम से किसी की बेबस और मायूस आवाज़ उभरी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। बेखुदा मुझे बेहद दुख है, बेहद अफसोस है कि मैं उसे नहीं बचा सका। काउंट कार्लाइल ने चश्मे ज़ोन में उस लहजे को पहचान लिया। ये वही लहजा था जिसकी बाज़ गश्त वो गुज़श्ता रोज़ वाल्ट के खत में सुन और पढ़ चुके थे। बाहर के मालिक ने अपने दोनों हाथों में शैम्पियन के 2 गिलास उठाए और बड़े धीमे लहजे में वाल्ट से बोला, डॉक्टर, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसकी मौत का सबब क्या हो सकता है? मौत का सबब, मार्टी गुर्राया, इसकी मौत का सबब या उनकी मौत का सबब जो इससे पहले मर चुके हैं। वालट ने अपना गिलास उठाया और उसे एक ही सांस में खाली करते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें कुछ मालूम नहीं और तुम खुद को डॉक्टर कहलवाते हो। मजमे में से एक तंजिया आवाज़ उभरी। हाँ, मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ मालूम नहीं, वालट हज़ियानी अंदाज में चीखा। काश तुम लोगों ने अब तक मुझे एक भी लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दे दी होती तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, फजूल है, ये एक अहमकाना फेल है। पोस्टमार्टम से मुर्दे के लवाहकीन को अजियत देने के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकता। डॉक्टर वालट का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम सबको जलील और कमीने हो। मार्टी अपनी जगह से उठकर वालट के करीब चला गया और चीख कर बोला, वहाँ इस कब्रिस्तान में मेरा भाई और 12 दूसरे आदमी मरे पड़े हैं। हर महीने एक आदमी मर जाता है, एक साल में 12 अमवात। और तुम कहते हो कि तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? हम बाज आए ऐसे मसीहा से। बाहर के मालिक ने वालट के जामे और विस्की उंडेली और वालट ने गुस्से से कहा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या मेरे यहाँ आने से कबल किसी शख्स की मौत नहीं हुई? इन सब के अमवात का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मौत का सौदागर नहीं। ये दुरुस्त है, मार्टी ने गुस्से से अपने होंठ काटते हुए कहा, लेकिन हमें कम अज़ कम उनकी मौत का सबब तो मालूम हो जाता था। वालट ने मार्टी की तरफ तवज्जो दिए बगैर कहा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? आखिर मैं झूठ बोलूं? तुम लोगों से कहूं कि ये लोग जो मरे हैं ताउन, दलदली बुखार या किसी और बीमारी से मर गए हैं तो ये ठीक होगा? मैं आखिर तुम लोगों को कब तक झूठे दिलासे दे सकूंगा? कब तक अपने आप को खुद फरेबी में मुब्तला रख सकता हूँ? मामला अब खासा तूल पकड़ गया है। इस मरहले पर काउंट कार्लाइल ने मुदाखलत करना मुनासिब समझा। वो आगे बढ़ी और ज़ोर से कहा, अखा, डॉक्टर तुम यहाँ हो और हम तुम्हें पूरे गांव में तलाश कर आए। वालट ने पलकें झिपकाईं और बेयकीनी के आलम में काउंट कार्लाइल को देखने लगा। काउंट कार्लाइल समझ गए कि डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसीलिए वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है।
इस दौरान वो सब लोग जिनसे ताबूत गिर जाने पर डॉक्टर के मेहमान यानी काउंट कार्लाइल की खासी झड़प हो चुकी थी, काउंट कार्लाइल के गिर्द जमा हो गए और उनके चेहरों से खशूनत और नाराज़गी नुमाया थी। काउंट कार्लाइल मुस्कुराए और उन सबको माजरत अमीर निगाहों से देखा और काउंटर पर एक सोने का सिक्का रखते हुए बार के मालिक से कहा कि वो इन सब को काउंट कार्लाइल के हिसाब में खूब पिलाए। फिर वो डॉक्टर वालट का हाथ थामे बार से बाहर चले आए। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता गांव में उतर रहे थे और काउंट कार्लाइल मजबूती से डॉक्टर का हाथ पकड़े उसके घर की तरफ रवां थे। तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या एलिस तुम्हारी खुराक का ख्याल नहीं रखती? काउंट कार्लाइल ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, खुदा के वास्ते काउंट कार्लाइल, मुझे बताइए आखिर आप यहाँ क्या लेने आए हैं? क्यों, क्या बात है? क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? काउंट कार्लाइल ने पूछा। इससे पहले कि डॉक्टर कोई जवाब देता, काउंट कार्लाइल बोले, भाई खुद तुमने ही तो खत लिखकर मुझे बुलाया है। डॉक्टर बेयकीनी से काउंट कार्लाइल की तरफ देखा। किसने? मैंने? ओह अच्छा, खूब याद आया। हाँ, मैंने ही तो लिखा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो खत इस कदर मबहम था कि आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा।